वेलकम टू आई एग्री। आज मेरे साथ हैं श्री ML शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, जिन्होंने 33 PILs पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल की हैं। जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रही वो थी प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल शांति भूषण के खिलाफ कि जो वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है, और उस PIL पे कोर्ट ने एक्शन भी लिया। करेक्ट? राइट। हाँ, आप उस PIL के बारे में मैं आपको एक बात पहले बता दूँ ताकि आपको कोई संदेह न रहे। मेरा वास्ता रहा है आपसे जी, और अरविंद मेरे मित्र हैं, तो मैं बस ये ऑन बोर्ड रखना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम कमिटेड टू ए कॉज ओनली। हाँ जी, मैं भी आई एम कमिटेड टू न्यूज़ लॉन्ड्री कॉज, लेकिन मैंने बस ये इसलिए मैं भी नथिंग पर्सनल। हाँ ठीक है जी। I made the 4-person party, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, and Manish Sisodiya. Because I would not go, even for this petition. This AAP party is not an automatic party which came right now just from the air. It's a foundation, it's a group of the people which started since a long, and they changed their face one by one. And ultimately, this is a final phase. What we are looking, we people are seeing them. तो ये सब आपने PIL में डाला है? Yeah, I have given that. What I found that this is the CIA organization which is funding and promoting in every country in the world. Through they especially touched the intellectual class, like doctors, advocates, artists, journalists, filmcar, journalists. They paid them directly, indirectly, in a different way. They satisfied their ego, and they tried them to put against the existing government to implement the object and the policy of the American government. नहीं तो ये सब आपने अपनी PIL में डाला है? I said so. जिस पर ये आपकी फंडिंग yes, और कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया? I said so. अच्छा। And Ford Foundation is front से. So fund is coming always in all over world through Ford Foundation. लेकिन ये मैं बस ये पूछ It's a part of my petition. नहीं, ये पार्टी में कि जो NGO में? Unless I will not complete my this initial, everybody will be unable to understand scenario. किसी को नहीं समझ आएगा? No, nobody can understand. It's a so fishy. It's a so complicated. तो फिर जजेस कैसे समझ लेंगे अगर? I made all the details in my petition and I argue everything before the court. That's why judge understood. Because Ford Foundation. नहीं, आपको किसने समझाया? I researched myself. I got all the information from the internet, from published journal from in America also. And the civil society name organization is being run in every country, in China, in Africa, in Afghanistan, in Russia, and in Russia especially in the name of the civil society in '89. That agitation happened over there, and Russia divided in 17 pieces. Same thing in '89 they did in Tiananmen Chowk, but the Chinese leader did the complete meeting jointly and decided no, don't put your knee down. तो तियाननमेन स्क्वायर में जो ये CIA का षड्यंत्र था, ये चाइना ने क्रैश कर दिया। They shooted everyone on the spot. More than 500 agitators were shooted in China. यहाँ इंडियन गवर्नमेंट in Russia कम रह गई। In Russia they did not do that. That's why Russia divided in 17 parts. In China, तो मतलब रशिया यहाँ मात खा गया, चाइना took this up seriously. Yes, लेकिन यहाँ पर ये लाठियों पे रुक गए जो इंडियन गवर्नमेंट। यही चीज डिट्टो चीज इंडिया के अंदर फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू फंडिंग करके केजरीवाल और सिसोदिया के थ्रू लेकिन यहाँ पर तियाननमेन स्क्वायर की तरह उन्होंने नहीं क्रैकडाउन किया। आपको क्या इससे जरा आपको इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि? नहीं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरा पर्सनल राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दे वर अवार्डेड ऑल्सो, दैट रिवार्ड और अवार्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम ऑफ द CIA. जनरली दे डू ऑल दिस वन, सिलेक्टिंग ए पर्सन. And मैग्सेसे अवार्ड जो मिला, like that, this is the game of the all. अरुणा रॉय को भी मिला है, वो आप समझते वो भी CIA एजेंट है? I can't say. There are so many. There are the Ford Foundation funding so many people. If I allege right now, it will be a defamation for them. But I cannot say about Aruna Roy. I cannot say anybody else also. किरण बेदी को भी मिला है मैग्सेसे अवार्ड? I cannot say right now. लेकिन वो भी सकता है। I cannot say right now. I cannot say offhand right now. But where I have my view, where I started to do something. The moment I came to know their own declaration in Ramlila Maidan, either they are CIA agent or they are government agent or Indian. तो आपको खुशी हुई कि आपकी इस बात को कोर्ट ने नहीं, मेरे को खुशी नहीं हुई, मेरे को कोई खुशी वाली बात नहीं। I filed the petition 2011 first.
तब then रिजेक्ट हो गई। then I raised complete question that the complete Anna team including the Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan and Anna Hazare, Karan Bedi and two another persons also. These all are part of the game of the civil society. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 2011 में जब आपने पीआईएल फाइल की थी तब कोर्ट ने एक्शन लिया, अभी लिया एक्शन? नहीं तो जब हमने पिटीशन फाइल की, इमीडिएटली वेरी सेम डे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूनियन ऑफ इंडिया कि वी आर नॉट गोइंग फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, टेक दिस पिटीशन इटसेल्फ एज ए कंप्लेंट, do the investigation minutely, if there is a violation of law, take the actions also and file your report after 3 months. And he disposed of my petition. अच्छा। It was very good proceeding that और day. अब इस बार ये वाली Last time, 1 minute, last time. Government did not do anything against these people. They did not even file the reports also. क्यों? उनकी मर्जी, गवर्नमेंट की मर्जी, बिकॉज दीज पीपल आप समझते हैं उनका भी सीआईए से कुछ शायद मतलब नहीं, सीआईए से नहीं, सीआईए से नहीं, यहाँ मैं इतना कह सकता हूँ, सीआईए आर बिहाइंड द फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन इज फ्रंट ऑफ द सीआईए, नंबर 1, एंड वो आप बट अन्ना हजारे, sorry, CIA is the Ford Foundation in front of CIA, CIA is behind Ford Foundation, Yes. and Ford Foundation is behind AAP, and AAP is in front of Ford Foundation. no, you are just twisting the word very simply. What I am saying, Ford Foundation is the face of the CIA. Ford Foundation funding so many people, so many trust and organizations. हाँ, वो तो मैं in समझ India. गया, मैं बस ये And connection। Ford Foundation has been funding even to the Kabir also, Manish Sisodia and Kejriwal. Thereafter, the Manish Sisodia, Kejriwal, Anna Hazare, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, all they clubbed together and they formed a civil society. They started the agitation in the name of the Lokpal Bill. They were also being supported by the various trusts belong to the America. CIA. They were getting the fund from American trust also, American companies also. And they were shouting the same policy what the America is looking for, what the America is trying to America impose. wants not only Lokpal. in India but in all our world also. तो अमेरिका, चिली, ब्राजील में लोकपाल लाने के That's a Brazil also, the same तो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है अमेरिका से वो बाकी लोकपाल का जगह। कंसेप्ट अमेरिका का है, लोकपाल का तो एक नाम दिया हुआ है। आप किसी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए तभी पॉसिबल है जब कुछ मात्र 2-4 लोग आदमी उसको कंट्रोल करें। तो फिर तो ये वाटर टाइट केस हो गया, फिर ये तो बहुत क्लियर केस है। तो फिर तो अंदर ये गए। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आप कितना टाइम लगेगा इन सबको अंदर जाने में? कुछ नहीं, ये तो 1 डे ट्रायल है, हाई कोर्ट से ही डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ये 70 जो कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं तो सबके सब अंदर इनके ऊपर जाएंगे? ये सारे आपके केस पैसा लग रहा है, तो ये सब 70 attractive अरविंद, शांति भूषण सब अंदर जो जाएंगे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, दे ऑल कवर अंडर दिस। नहीं, लेकिन प्रशांत भूषण और शांति भूषण तो लड़ ही नहीं रहे, लेकिन वो भी अंदर शांति जाएंगे। भूषण वो दोनों जो हैं थोड़े स्मार्ट हैं, जैसे ही उनको इस केस के बारे में मालूम हुआ उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है आज की। अच्छा, इसीलिए वो नहीं लड़ रहे, इसीलिए वो केस नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ नहीं रहे, तो उनका तो केस इलेक्शन लड़ना तय था, नहीं तो पहले लड़ रहे थे। उन्होंने खुद ही अपना हाथ हटा लिया है। अच्छा, चलो, हम पक्का हो चुका है इस चीज के बारे में। चलो, अच्छा, ये बस एक पीआईएल है आपकी, आपने काफी पीआईएल्स फाइल किए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें ये निश्चित होता है कि अगर आपकी पिटीशन गलत है या कोई भी उसमें लेकुना है, लीगली नहीं है, तो वहाँ पे डिसमिस होने के साथ कॉस्ट भी लगती है, और हैवी कॉस्ट लग सकती है, 5 लाख तक लग सकती है, 10 लाख तक लग सकती है, बेइज्जती बदनामी अलग होती है। अगर आपकी रिजेक्ट हो गई? ये रिजेक्ट होती है, डिपेंड अपॉन द जज। आपकी रिजेक्ट हुई है कभी? हमारी आपने बताया ना 35, हमारी काफ़ी रिजेक्ट हुई हैं। तो फिर आप पर कॉस्ट भी लगा? तो ये कोल ब्लॉक नहीं, कॉस्ट लगी हमारी, एक पिटीशन में कॉस्ट भी लगी हमारी, लेकिन दैट वाज टोटली रॉन्ग, रीजन अलग अलग है हमारे। और बेइज्जती और बदनामी होती है? बिल्कुल होती है। आप कह रहे हैं ना 35 पिटीशन आपकी फाइल हुई, तो आपके क्यों फाइल हुई, क्वेश्चन आता है ना, क्यों डिसमिस हुई? नहीं, मैंने बोला आप फाइल क्यों किए, मैंने ये नहीं डिसमिस क्यों हुई, मैंने बोला आप फाइल क्यों करते थे? ये क्वेश्चन होता है कि आपने पिटीशन फाइल की, आपकी डिसमिस हो गई। मैंने तो सिंपली ये नेगेटिव पॉइंट आता है, हर किसी के लिए आता है, जो भी फाइल करता है उसके लिए भी आता है। अभी ये कोल ब्लॉक की मैंने तो पूछा ही नहीं। नहीं, आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पूछा ही। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा ना ये। नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो कोल ब्लॉक की पिटीशन हमने साल भर बाद फाइल की। जब हमारी पिटीशन के ऊपर नोटिस हो गया 14 सितंबर को, तो उसके 4 महीने बाद दूसरे अलग अलग एडवोकेट अपनी पिटीशन लेके आ गए। सुब्रमण्यम स्वामी? नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी 2G, उन्होंने 2G किया था। 2G किया था। 2G पर आपने फाइल की? नहीं, 2G मेरी बहुत साफ आदत है, अगर कोई पिटीशन ऑलरेडी फाइल होती है मैं उसमें फाइल नहीं करता। अच्छा। क्योंकि उसमें पिटीशन फाइल करने का मतलब सीधा सा एक ही बात है, वो आदमी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के, क्रेडिट लेने के लिए सामने लेके आ रहा है। 2G की पिटीशन किसी एक एडवोकेट की थी जो दिल्ली हाई कोर्ट का था, उसके में नोटिस हो गया था। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी
और दूसरे एक और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दोनों घुस गए उसके बाद पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए। उन लोगों और ने क्या पहले काम किया, जो पहले ने फाइल की थी उसका वो क्या गायब नाम? हो गया बंदा बेचारा। उसकी पिटीशन एक साइड में डलवा दी इन लोगों ने, और पहला नाम उस एडवोकेट का आ गया, और उसके बाद सुब्रमण्यम इनका नाम आया। ये सब चलता रहा। हमारे कोल ब्लॉक में भी यही हुआ। हाँ, मैं बोलना जानना चाहता हूँ कि जब फॉर एग्जांपल ये 2G पर जब भी बहस होती है तो प्रशांत भूषण और सुब्रमण्यम स्वामी को आके बैठा देते हैं स्टूडियो में, तो इस पर ये जो आपके फंड्स पर काफ़ी बहस और डिबेट्स हुई स्टूडियोज़ में, लेकिन इसमें हमें नहीं बुलाया आपको नहीं बुलाया? क्यों? चैनल्स ने क्यों नहीं बुलाया आपको? क्योंकि पिटीशन तो आपकी है। ये चैनल वालों से पूछिए कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया बहस में। मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये उनकी चॉइस है। नहीं, हमने सोचा हम आपको यहाँ बुला के पूछे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस पिटीशन के पीछे है कौन। इस पिटीशन में मेरे पीछे साक्षात मेरे पीछे कोई नहीं है। नहीं, हाँ, आपके पीछे मेरी जितनी पिटीशन होती है सब मेरी अपनी होती है। यही मैं कोल ब्लॉक का आप एग्जांपल आपको बता रहा था। कोल ब्लॉक की पिटीशन नोटिस के बाद में ये प्रशांत भूषण भी अपनी फोटोकॉपी करके हमारी पिटीशन की घुसी आए। अच्छा, आपको जेरोक्स करके उन्होंने पिटीशन बना दी थोड़ा सा घुमा फिरा करके। और इन्होंने बदतमीजी किया कि कोर्ट के अंदर इन्होंने अपनी पिटीशन नंबर 1 करा दी और हमारी पिटीशन उन्होंने ड्रॉप करा दी। वो कैसे करता है? रजिस्ट्री के अंदर इन्होंने मैनिपुलेशन किया और अपनी पिटीशन इन्होंने नंबर 1 करा दी, तो लिस्टिंग में केवल ये आने लगा कि मिस्टर प्रशांत भूषण की पिटीशन है और मिस्टर शर्मा की पिटीशन गायब हो गई वहाँ पे। जो लोग इस तरह की गंदी हरकत करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्रेडिट के लिए करते हैं। वो दूसरे की पिटीशन ग्रेव करके केवल नाम कमाना और फिर पैसे के द्वारा या किस तरह से पॉलिटिक्स के द्वारा अलग अलग चैनलों को मैनेज करके खुद उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बैठकर लोगों को ये बताना कि ये चीज़ हम कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज इट्स समथिंग वर्स्ट देन द हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम का जिक्र मतलब जब आप किसी दूसरे का किया हुआ किसी भी काम को क्रेडिट ले रहे हैं तो दैट्स अ न्यूसेंस। दैट इज न्यूसेंस एंड इट्स अ टोटली न्यूसेंस। आज के टाइम ये ट्रेंड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पे नोटिस हुआ, फटाक से उसकी पिटीशन की कॉपी ली और बाद में 10 दिन बाद खुद भी घुसे और फिर स्टूडियो में बैठ गए और टीवी वाले भी उनको बैठाते हैं और आपको नहीं पूछा। नहीं, मुझे वो नहीं पूछते। उसका कारण बहुत साफ है, मेरी ऐसी कोई बड़ी औकात नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, न कोई बड़ा आदमी, छोटा सा एडवोकेट हूँ। आपने मुझे बुलाया है, शुक्रिया। आप मेरी बात बता रहे हैं, लोगों को जानकारी हो जाएगी, बस अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और आप हीनियस क्राइम की बात करते, आप काफ़ी सुर्खियों में रहे क्योंकि आप लोगों को शायद पता ना हो, आप थे डिफेंडेंट। वो जो दिल्ली का रेप केस हुआ था उसमें आप उन लड़कों के डिफेंडेंट रहे। आपको लगा कि वो बहुत वन साइडेड कवरेज थी? क्योंकि मैं बस कोट कर रहा हूँ कि हमारे जो रिपोर्टर्स आपसे मिले थे, आपने बोला था कि पुलिस ने बोला है कि ये वाटर टाइट केस है। और आपके हिसाब से ऐसा केस हो ही नहीं सकता, तो आपने एक ओपन चैलेंज लिया दिल्ली पुलिस का। when they said they have an airtight case on the Delhi rape case, there are no airtight cases. Yes. Delhi Bar Council ने boycott कर दिया defendants को. Now I agree, everyone deserves a defense. That is the basic premise of natural justice. चाहे जो भी मैंने कहा था, उसी दिन मैंने कहा था, अगर ये लड़के हैंड टू माउथ न होकर करोड़पति घराने के होते तो वहाँ पे मेरी जरूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ पे बड़े से बड़े सॉलिसिटर जनरल, एक्स और बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट वहाँ खड़े होते हैं इनको बचाने के लिए, और कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन ये हैंड टू माउथ है, इनके पास खाने को रोटी नहीं है, इनके लिए कौन खड़ा हुआ? दे डिजर्व फॉर जस्टिस। एक जस्टिस होना चाहिए। और गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस कह रही एयर टाइट केस है, इसका सीधा सा मतलब दिल्ली पुलिस ने मैनिपुलेशन किया है। तो आप अभी भी समझते हैं कि वो लड़के बेकसूर हैं? मैं ये नहीं समझता हूँ लड़के कसूरवार हैं और बेकसूर हैं। ये निर्णय जज को करना है, कोर्ट को करना है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, उनको जस्टिस नहीं मिला। और आज भी मैं अपील की प्रोसीडिंग में हूँ, तो अपील की लोअर कोर्ट में भी मेरे को परेशान किया गया। मेरे क्लाइंटों को टॉर्चर करके उन्होंने दूसरे वकीलों को वकालतनामा दिलवाया। यही हाल इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में किया। दिल्ली हाई कोर्ट दोनों लेडीज जज जो थी वो मेरे को हड़का रही थी, परेशान कर रही थी और कह रही थी कल एक दिन के अंदर, कल आप अपील चालू कीजिए, हायरिंग और कंक्लूड कीजिए। हमने उनसे कहा ये बच्चे, इनको हिंदी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट नहीं आता, इनको कम से कम मालूम तो पड़िए इनको क्या ऑर्डर हुआ है, क्या एविडेंस है, क्या एलिगेशन इनके अगेंस्ट में, क्या फैक्ट है। तो ट्रांसलेशन करके दी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ऑर्डर किया मिस्टर शर्मा अपीयर ही नहीं हो रहे यहाँ पे। इसके अलावा जो इन लड़कों को डिफेंड करने के चक्कर में आप जब ऐसा स्टांस लेते हैं कि रेप प्रोवोकेशन की वजह से होता है, कि आप लड़की प्रोवोक करती है तभी रेप होता है, ये कैसे इसमें, मतलब ये मुझे बात समझ मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आप ये बीच में दिल्ली गैंग रेप में प्रोवोकेशन दोनों को आप कहाँ से ले आए? नहीं, क्योंकि आपने इस रेप के मुद्दे पर तो आप डिफेंड करें वो ठीक है, लेकिन आपने जो एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि एक जो प्रोवोकेशन होती है
उसको भी डील करना चाहिए, वो मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप चैप्टर खोलते हैं तो आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। हाँ बताइए। नेचर इज ओनली परफेक्ट। सोसाइटी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, केवल प्रकृति, नेचर पूरा कंट्रोल रखती है, कंप्लीट कंट्रोल रखती है। नेचर ने जहाँ लड़की को मासूम, फूल की तरह मुलायम, एक कमजोर बनाया है, कमजोर, हाँ, फिजिकली, लेकिन मेंटली सबसे ज्यादा मजबूत होती है लड़की। अच्छा। न केवल मेंटली मजबूत होती है, बल्कि उसके अंदर सहन की शक्ति जो होती है, धरती की तरह सबसे ज्यादा सहन शक्ति लड़की के अंदर होती है। जैसे कहते हैं गाय है, मतलब वो नहीं, भी गाय का मैं एग्जाम्पल नहीं दूं, जैसे धरती के अंदर सहन शक्ति होती है, इसीलिए धरती को भी धरा कहा जाता है। हाँ। धारणी, जो धारण करती है, हर तरह की मुसीबत को धारण करती है, यही गुण नारी के अंदर प्रकृति ने दिए हैं। पुरुष के अंदर फिजिकली बहुत मजबूती होती है, इतनी मजबूती होती है, चट्टान की तरह मजबूत होता है पुरुष। मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता, नहीं, लेकिन पुरुष का मतलब स्पष्ट रूप है, मैं किसी एक व्यक्ति के से इसकी नहीं कह रहा, एक नेचुरल जो इफेक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। लड़की के मुकाबले पुरुष हमेशा स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, और उसी को देखते हुए प्रकृति ने और समाज ने दो स्थिति निर्भर की है। घर लड़की के ऊपर, घर लड़की घर में घर है, लड़की के ऊपर, पुरुष के ऊपर पूर्ण सुरक्षा का दायित्व होता है। सुरक्षा, प्रोटेक्टर, हर तरह से, खाने पीने की सुरक्षा, इज्जत की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, कमाने की सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने और समाज ने डाल दी है। लेकिन स्त्री की सुरक्षा भी प्रकृति ने पुरुष के ऊपर ऑटोमेटिकली डाली है, कि कोई भी पुरुष चाह करके भी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी लड़की से सेक्स नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं तो मतलब जब भी करता है वो एक्चुअली लड़की चाहती है तभी होता है। जब तक किसी भी पुरुष को एक्साइटमेंट नहीं होगा, आप किसी भी वैज्ञानिक और डॉक्टर और साइंटिस्ट से मालूम कीजिए, स्पष्ट बता देगा, जब तक पुरुष एक्साइटेड नहीं होगा वो सेक्स करने के लायक ही नहीं होगा। अच्छा। लेकिन यही गुण अपोजिट रूप से स्त्री में प्रकृति ने दिया हुआ है। प्रकृति, स्त्री चाहे एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन उसके साथ वो सेक्स कर सकती है। तो मतलब शी इज ऑलवेज रेडी एंड हैज टू बी। आई एम नॉट सेइंग सो, आई एम सेइंग द नेचर हैज सेड, हां नेचर ने बोला है, द सर्कमस्टांसेस, कैपेसिटी। अब मैं इससे ज्यादा, यू शुड अंडरस्टैंड कि बिना एक्साइट हुए एक लड़का, सर मुझे पता है मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो इसलिए मुझे जानकारी कम है। आप शादीशुदा अगर नहीं है तो, लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि बिना एक्साइट हुए आप पेनिट्रेशन कर ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, बहुत साफ मैं कह रहा हूं, तो मैं एक चीज इस बात का जवाब किसी डॉक्टर से पूछिए सर, मुझे इन बातों की नहीं, आपको यू शुड नो दिस फैक्ट। अच्छा, जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे, यू आर नॉट कैपेबल फॉर पेनिट्रेशन एट एनी कॉस्ट। If you can't do that, how can you go for sex and how can go for rape? अच्छा, First step is the तो excitement. ओके, तो आप बोल रहे हैं कि जब तक, और वो एक्साइटेड तभी होगा जब औरत उसको एक्साइट करेगी, तब नहीं, जब उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा। अच्छा, एटमॉस्फेयर कौन देता है? ये उस फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है, वो कौन सी परिस्थिति है, क्या क्या चीजें हैं जो कि एक लड़के को या पुरुष को इस पोजीशन में करती है कि वो पेनिट्रेशन करने की स्थिति में शुरुआत हो सके। बहुत साफ कहना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि आप खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ये पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। अगर वर्ल्ड में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इस बात को झूठा वो तो मैं मान, तो कोई नहीं, आई एम रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ द सर, मैं बायोलॉजी और लीगल के इशू में मैं आपको चैलेंज ही नहीं करूंगा। नॉट लीगल, दोनों, नो चैलेंज वाली बात नहीं, दोनों के मामले मेरी जानकारी आपसे कम है, मैं मानता हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं। नहीं है, नो सवाल जानकारी का नहीं है, इट्स ए वेरी फैक्ट, यू हैव टू कंफर्म दिस फैक्ट फ्रॉम ए डॉक्टर्स, फ्रॉम योरसेल्फ आल्सो। क्या आप कर सकेंगे? बता दीजिए आप।